Hello, hi, and welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh, and I'm back in the series of string problems. So we were solving this mastering the technical interview sheet, and in this sheet we were solving this section, string section, and we have solved maybe a couple of problems, and we are on the fourth problem, that is rotate string. This is also an easy problem. I don't know. I think the sheet is not arranged in the increasing order of difficulty. So this problem, rotate string, says that we are given two strings s and goal. ठीक है, दो strings दी हैं. We need to return true if and only if s can become goal after some number of shifts on s. ठीक है, कि भाई दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग है एस, एक स्ट्रिंग है गोल. वी नीड टू रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ एस कैन बिकम गोल, कि भाई एस गोल बन सकती है आफ्टर सम नंबर ऑफ शिफ्ट्स ऑन एस. So what is a shift? Let's first understand that. A shift on S consists of moving the leftmost character of S to the rightmost position. तो एस स्ट्रिंग पे जो शिफ्ट है वो उसके लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को राइट मोस्ट पोजीशन पे मूव करना. मींस भाई पहला कैरेक्टर उठाओ, लास्ट में डाल दो. फिर जो सेकंड कैरेक्टर था वो अब पहला बन गया है, अब उसको उठाओ फिर लास्ट में डाल दो. दिस इज अ शिफ्ट. ठीक है. For instance, A, B, C, D, E is given, then it will be B, C, D, E, A because A goes to the last after one shift. ठीक है, देखते हैं इसको लिख के देखते हैं. A, B, C, D, E. It becomes B, C, D, E, A. तो this becomes this, है ना. तो मीन्स ये जो A है ये लास्ट में आ जाता है ना. B, C, D, E, हाँ, B, C, D, E. So we remove this A from this front and we put it here after E so that it becomes this goal. So this is your goal and this is your S. And this is one single shift. And you can make as many shifts as possible. So after one more shift, it would be C, D, E, A, B. One more shift, D, E, A, B, C, and so on. You know, eventually you will end up getting the same string after how many shifts? One, two, three, two more shifts, five shifts. So like equal to the number of characters, because after five shifts the characters will be at this original positions. So this is what is given so far in the problem statement. And here we can see that what we need to do is we need to find that after some shifts, no matter how many shifts you make, definitely you will not, there is no meaning in making shifts more than n if n is the length of s. ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा शिफ्ट्स कर n शिफ्ट्स के बाद तो वो s becomes s, है ना. सो दैट मीन्स जितने भी शिफ्ट्स होंगी एस n से कम ही होंगी. तो दैट मीन्स कि भाई what we need to do is we need to check if we can convert s into goal after some number of shifts. ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको देखते हैं. So here we can see that a b c d e c d e a b, yes, how many shifts it would take? A and B, there are two characters. So if I shift A after E, then B after that A, we will end up getting this goal. So for this, we need to make two shifts. So for A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, in order to convert it into C, D, E, A, B, in C, there was C, D, E, and then here we would have A, B. This thing here, two shifts, है ना. तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू हियर, कि भाई कितनी शिफ्ट्स आपको करनी है यहाँ पे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एस इनटू गोल. अब देखो, इसमें ये बताना आपको, you need to count.
तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? देखो सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन देखो कि भाई अगर n और m, n इज द लेंथ ऑफ s, n is length of s, m which is length of goal. If n is not equal to m, अगर दोनों बराबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, राइट फ्रॉम देयर, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर हो सकता है इनमें करेक्टर्स सेम ना हो, है ना, या फिर करेक्टर्स सेम हो बट ऑर्डर शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग ना हो, दीज कैन बी ऑल्सो द केसेस। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, एक सिंपल सॉल्यूशन तो हम सोच सकते हैं कि ब्रूट फोर्स कर लो, ठीक है, ब्रूट फोर्स कर दो, मींस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या होगा कि भाई इसके सारे के सारे अपना एस के सारे शिफ्ट्स, मतलब एन शिफ्ट्स करके देख लो इसके। तो ए बी सी डी ई है, तो इसका एक शिफ्ट करो, एक शिफ्ट के बाद बी सी डी ई ए बन गया। अब इसको गोल से कंपेयर करो, फिर एक और शिफ्ट करो, अगर गोल से मैच नहीं करता सी डी ई ए बी, फिर कंपेयर करो, अगर फिर भी नहीं मैच करता तो फिर से एक शिफ्ट करो एंड देन कंपेयर इट अगेन। सो दैट वुड कंज्यूम बिग ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। कैसे सोचना, इसमें सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एक लूप से तो देखो आप इटरेट करोगे इन कैरेक्टर्स पे, और अंदर वाली लूप इसको we will be using to make that shift and compare with the goal, है ना। तो the first solution would be big of n square solution, जो कि मतलब काम तो कर जाएगा बट that we will not implement here, that's up to you to implement। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा ठीक सोल्यूशन है, although there are multiple solutions for this problem। KMP से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम, नुथ मॉरिस पैटर्न जो एल्गोरिथम होता है ना, पैटर्न मैचिंग वाला, बट उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रेंट्स बहुत लो हैं, सो वी कैन यूज़ अ ट्रिक हेयर। सो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, देखो लेट्स टेक दिस स्ट्रिंग ए बी सी डी ई, एस है हमारे पास, ए बी सी डी। अब देखो और गोल है सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी। अब इसमें अगर मैं देखो इस स्ट्रिंग, ये जो है इसकी साइक्लिक शिफ्ट है ना, मतलब यहां पे इस स्ट्रिंग में एस में इसका फर्स्ट कैरेक्टर कहीं होगा, और उस फर्स्ट कैरेक्टर के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इसमें हैं और इसमें भी हैं, और उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं वो इससे पहले हैं, मींस हियर। तो मॉडुलो वगैरह आप सोच सकते हो कि मॉडुलो वगैरह कर सकते हैं, या फिर वो, है ना, उस टाइप से सोच सकते हो, बट वहां गड़बड़ आएगी, करके देखना। तो आप अगर ये वाले कैरेक्टर्स यहाँ लीनियरली आ जाएं किसी तरह से कि भाई ई के बाद ही आ जाए हमारे पास, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब रोटेशन करने में, रोटेशन वैसे तो कर सकते हो आप कि भाई ई के बाद चलो रोटेट कर देते हैं ना, रोटेट करके चेक कर लेते हैं ए और बी है या नहीं, बट उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो रादर देन डूइंग दैट हम क्या करेंगे, इसको दो बार कॉन्कैटिनेट कर देंगे कि भाई ए बी को इसके बाद ही लेके आना है, तो यहाँ ए बी सी डी ये बना देते हैं। सो इवेंचुअली द स्ट्रिंग विल बिकम ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब देखो इसमें सारी की सारी साइक्लिक शिफ्ट्स कंटेन है, क्योंकि देखो भले ई से शुरू करो, इसके बाद ई से शुरू होने, अगर आप ई से शुरू कर रहे हो तो मतलब जो साइक्लिक शिफ्ट है, गोल है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ई एंड इट्स अ वैलिड गोल, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे उठा के आपको इसके सामने रखने पड़ेंगे। डी से शुरू कर रहे हो तो ये पहले वाले तीन उठा के इसके सामने रखने पड़ेंगे ई के बाद। सी से शुरू हो रहा है गोल, तो इससे पहले वाले उठा के इसके बाद रखने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स कि भाई अगर मैं एस को दो बार कंकैटिनेट कर दूं तो आई विल हैव अ स्ट्रिंग विच कंटेन्स ऑल द साइक्लिक शिफ्ट्स, सारे के सारे पॉसिबल गोल्स इसमें होंगे। तो देख सकते हो सी है, सी एस सी डी ई ए बी,
बस अब आपको इस स्ट्रिंग को इसमें सर्च करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब वो आप लूप लगा के करो या कैसे भी करो, लूप लगा के कर सकते हो या फिर इनबिल्ड मेथड्स होते हैं वैसे कर सकते हो। ठीक है, सो हाउ विल यू सॉल्व, लेट्स सी। तो लेट्स राइट दिस फंक्शन, क्या नाम है रोटेट स्ट्रिंग का, इस फंक्शन का नाम क्या है, ऐसे रोटेट स्ट्रिंग। एस गोल, तो देखो एन निकाला हमने, लेंथ ऑफ एस, एम निकाला हमने, लेंथ ऑफ गोल। अब आई, क्या कर रहे थे, हाँ, एस को, या फिर लेट्स कॉल ए न्यू स्ट्रिंग, लेट्स कॉल concatenated string s प्लस s। अब इस concatenated string में हमें ये गोल ढूंढना है, सो concatenate str डॉट फाइंड, तो ये फाइंड मेथड होता है बेसिकली, फाइंड मेथड जो है, अगर ये गोल एग्जिस्ट करता है इस concatenate string में, तो ये फाइंड मेथड इस गोल, ये गोल जहाँ स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट इंडेक्स इस स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, और अगर ये गोल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो इट विल वो एंड रिटर्न कर देगा, है ना, जैसे फाइंड हमने पढ़ा ही है, फाइंड है ना, एसटीएल में वही है ये बस। तो concat str डॉट फाइंड गोल इज लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन जो भी हमारा m है ये, इफ इट इज द केस तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है, तो रिटर्न ट्रू, एल्स return false. So this is one of the ways to, simple ways to solve this problem. रोटेशन वाला करके भी कर सकते हो आप, मतलब मॉड्यूलो वगैरह करके, जिसमें आपको इससे कॉन्कैटिनेट करने की जरूरत नहीं है। मैं भी करने का ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि सॉल्व तो नहीं हुआ मेरे से उससे, बट आई विल ट्राई। अभी ट्राई करो, ये सिंपल मेथड है, एक के से हो सकता है, के से ट्राई करो, नोट मॉरिस पैटर्न एल्गोरिथम, इससे तो बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल ही हो जाएगा, बट इतना मतलब दिस इज ओवरकिल फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, और भी मेथड्स हैं, इसके देख सकते हो आप, सोच सकते हो, मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया इसके और भी मेथड्स होंगे। हाँ ठीक है, सो दैट्स, चलो चलते हैं कोडिंग करते हैं इसकी। एस डॉट लेंथ, गोल डॉट लेंथ, हाँ, concat string s plus s return concat find goal less than, ठीक है। हाँ सॉरी, पाइथन थोड़ी है ये। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, वो वाला आपने चेक करना रह गया कि भाई अगर इफ एन, इफ अगर तो मतलब एन एम के इक्वल नहीं है, इफ एन इज नॉट इक्वल टू एम देन रिटर्न फॉल्स, यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दो, कि जब अगर साइज इक्वल नहीं है फिर तो मतलब फॉल्स ही होगा वो,
That is an edge case which I think I was missing. दिमाग फ्रीज कर रहे हैं आज तो यहाँ से. ठीक है, गॉट एक्सेप्टेड. सो आई थिंक तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन है ना? देख सकते हो आप, बिग ऑफ एन. हाँ, ठीक है. एंड और व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी? वी आर यूजिंग अनदर स्ट्रिंग, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ एन. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी. So I hope this makes sense, and had a hard day, couldn't get time to solve problems. Uh, we'll be releasing other videos of the playlists which are pending soon, as I get the time to shoot videos. And I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.